Good afternoon, students. Today we will continue our first chapter of history, the rise of nationalism in Europe, and today we will conclude our lesson. But last but not least, today we will learn about visualizing nation. Nations began to be portrayed as female figures called allegory. Ideas like liberty, justice, and republic too were personified as female figures. Allegories were erected of squares to mark national unity. Coins and stamps too carried their images. Mariana represented Republic of France and Germania portrayed German nation. And now you understand that when France was free and for the symbolize their nation, the artist chosen a paintings or pictures. During the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice, and the republic. These were represented through specific objects or symbols. As you would remember, the attributes of liberty are the red cap or broken chain, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scales. Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. In France, she was as Mariana, a popular Christian name, which this idea of a people of nation. Her characteristics were drawn from those of liberty and republic. The red cap, the tricolor, the cocked statues of Mariana were needed in public squares to remind the public of national symbol of unity and to pursue them to identify with it images were marked or coins and stamps. Similarly, Germania became the allegory of German nation. In visual representation, Germania wears a crown of oak leaves as the German stands for heroism. विजुअलाइजिंग नेशन, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। राष्ट्रों को महिला आकृतियों के रूप में चित्रित किया जाने लगा, जिसे कहा जाता है रूपक। स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को भी इस रूप में व्यक्त किया गया था। राष्ट्रीय एकता को चिन्हित करने के लिए चौकों पर रूपक लगाए गए थे। सिक्कों और टिकटों में भी उनकी छवियां थी। मेरियन ने फ्रांस गणराज्य और जर्मनिया का प्रतिनिधित्व किया और चित्रों के द्वारा इन्होंने अपने राष्ट्र को चिन्हित किया। अब देखो, 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो, पर उस समय उन्होंने राष्ट्रों को किस में चित्रित किया? तो नारी के रूप में प्रस्तुत किया। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया, वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। पर आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय
और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया और इन आदर्शों को कुछ विशेष प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसे प्रतीक क्या था, तो लाल टोपी या टूटी जंजीर, और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया गया जिसके आँखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह तराजू लिए हुए है। इसी प्रकार नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसने जनराष्ट्र के विचार को प्रकट किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीकों की याद आती रही और लोग उससे एकता स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट नेशनलिज्म एंड imperialism. Nationalism and imperialism, Balkan issue. Balkans become the source of nationalist tension in Europe after 1871. It was too a region of geographical and ethnic variations, inhabited by slaves and was under control of Ottoman Empire. Ideas of nationalism swept over entire Balkan region. One by one, different nationalities declared their independence through struggle. And now we learn about this. Now you know about nationalism. Nationalism means a feeling of we are the people of one nation, and it is known as nationalism. So by the last quarter of 19th century, nationalism no longer retained as an idea of liberal democratic sentiments of the first half of the country, but become a narrow idea with limited ends. During the period, nationalist groups became increasingly intolerant of each other and every day to go to war. The major European powers in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aims. Means they want the area of their nation should be increased, and therefore the idea of nationalism slowly turn into imperialism. The most serious source of nationalism tension in Europe after 1871 was the area called the Balkan. The Balkan was a region of geographical and ethical comprising modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Croatia, Bosnia, etc. etc. A large part of Balkans was under the control of Ottoman Empire. The spread of ideas of romantic nationalism in the Balkan together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. Means after the disintegration of Ottoman Empire, there was a conflict started in Balkan area. Although
In the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. One by one, the European subjected nationalities broke away from its control and declared independence. The Balkan people based their ideas for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. Hence, rebellious actions in Balkan started a struggle and attempts to win back their kingdom's independence. At the different ideas of nationalities struggled to define their identity and independence. The Balkan area became an area of intense conflict. The Balkan states were fiercely fought with each other and each hoped to gain more territory. Means they want more area to increase, and this is known as expansion. So they want to expand their boundaries, and therefore what happened? Balkans also became the scene of big power rivalry. During the period, there was intense among the European power over trade and colonies as well as naval and military. These were fought with each other. Each power, Germany, England, Hungary, was keen to countering the hold of other powers over the Balkan and extended its own control over area, and this led to the starting of the First World War. राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। बाल्कन मुद्दा। बाल्कन राष्ट्रवादी के स्रोत बन जाते हैं। 1871 के बाद यूरोप में तनाव, यह भी भौगोलिक और जातीय का एक क्षेत्र था। विविधताओं, गुलामों का निवास था और नियंत्रण में तुर्क साम्राज्य। राष्ट्रवाद के विचार संपूर्ण रूप से बह गए। एक के बाद एक विभिन्न राष्ट्रीयताओं की घोषणा, संघर्ष के माध्यम से उनकी स्वतंत्रता। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी के अंतिम तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक जो स्वरूप था वो नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि सदी के शुरुआत में ही अब राष्ट्रवाद जो बहुत बड़े लक्ष्य वाला राष्ट्रवाद था, वो अब सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। समझ में आ रहा है? इस बीच राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए। अनुदार होते चले गए मतलब एक दूसरे से झगड़ने लगे और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहने लगे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का मतलब राष्ट्रवादी इच्छाओं का उपयोग किया। बेटा आप देखो यहाँ पे ना साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद यानी क्या बेटा? अपने राष्ट्र के अलावा अपने राष्ट्र की सीमाओं को बढ़ाने के लिए किसी और देश के ऊपर हमला करना या उनको अपने साम्राज्य में जोड़ने के लिए कुछ करना, इसको कहा जाता है साम्राज्यवाद। और 1871 के बाद इस साम्राज्यवाद यूरोप में क्या हो गया? तो यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक मुख्य क्षेत्र था जिसका नाम था बाल्कन क्षेत्र।
इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी और इसमें कौन कौन से छोटे छोटे राष्ट्र सम्मिलित थे? तो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया वगैरह वगैरह। और इस क्षेत्र के निवासियों को आम तौर पर स्लाव पुकारा जाता था। मतलब ये सारे देशों में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? स्लाव। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा किसके नियंत्रण में था? ऑटोमन साम्राज्य के। और बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों को फैलने और ऑटोमन साम्राज्य का विघटन होने से स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी, हालात काफ़ी गंभीर हो गए थे। और 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के ज़रिए ऑटोमन साम्राज्य को मजबूत बनाना चाहा, पर क्या हुआ? परंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता उनके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनैतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का भी उपयोग किया, क्या साबित करने के लिए? कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया। और आखिरी में क्या हुआ? तो बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने का प्रयास किया। और जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता को परिभाषित करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियाँ और कठिन क्यों हो गई? इसलिए हो गई कि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। और जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं भी खुलकर सामने आई। और इसमें कौन कौन शामिल हुआ? रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरी की हर ताकत बाल्कन अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई बार युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। It became an area of conflict among its nationalities and later became one of the causes of First World War. Each state developed jealousy and hope to expand at the cost of others. European power further complicated the situation. They were struggling to prove their trade and military might over the others. Countries like Russia, Germany, England, Austria, Hungary extended their control over Balkan area. यह अपनी राष्ट्रीयताओं के बीच संघर्ष का क्षेत्र बन गया और बाद में कारणों में से एक बन गया। किसके कारणों के लिए? प्रथम विश्व युद्ध के। प्रत्येक राज्य ईर्ष्या से विकसित होता है और दूसरों की कीमत पर विस्तार करने की आशा करता है। यूरोपीय शक्ति ने स्थिति को और जटिल बना दिया। वे दूसरों पर अपने व्यापार और सैन्य शक्ति को साबित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसे देशों ने अपना नियंत्रण बढ़ाया और बाल्कन क्षेत्र विभाजित होने लगा।
साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। और इसके बीच क्या हुआ, तो 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सभी सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे और साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे थे। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। नेशनलिज्म अलाइंड विथ इम्पेरियलिज्म लेड यूरोप to disaster in 1914. But in meanwhile, many countries in the world which had been colonized by European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. The anti-imperial movements that developed everywhere were nationalist, in the sense that they all struggled to form independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontation with imperialism. European ideas of nationalism were nowhere replicated for people everywhere, because for people everywhere developed their own specific variety of nationalism. But the idea that societies should be organized into nation states came to be accepted as natural and universal. इसको फिर से एक बार रिपीट करती हूँ मैं हिंदी में कि ये राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए। क्यों? क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया, मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए, ये सब लोगों ने स्वीकार किया। बेटा यहाँ पे आज हमारा लेसन कंप्लीट होता है। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ कि भाई क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपको खुद करने हैं। मैं लेसन आपको पूरा समझा देती हूँ, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन आंसर्स लिखते लिखते आपको कोई डिफ़िकल्टी आएगी तो वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर दूँगी। बाकी सारे क्वेश्चन आंसर्स 10th के आपको खुद करने हैं।